حسن صاحب، گزشتہ ہفتے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے سوال کے جواب میں آپ نے جو کہا، ویورز کی اکثریت نے کمنٹ باکس میں اسے ناپسند کیا، 80% نے بائیکاٹ کی حمایت کی۔ دیکھو بھئی، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا وہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ میرے نزدیک پاپولیرٹی وغیرہ، پاپولر تو کمیڈینز بھی ہوتے ہیں، پلیئرز بھی ہوتے ہیں، پیغمبروں کو علیحدہ رکھتے، اس کے بعد پاپولیرٹی اگر کسی سائنٹسٹ کی ہے وہ پاپولیرٹی ہے، یا کسی اہل دانش جو کچھ دو چار کو گزرے ہوں، اگر ہمارے ہاں دو چار بھی نہیں، اچھا سچ بولو چاہے کڑوا لگے یا برا لگے۔ اور بات سنو، یہ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد ہے تقریباً 1.5 کروڑ، لاہور سے کم پوری دنیا میں۔ اچھا، جن میں سے 72 لاکھ اسرائیل میں اور 62 لاکھ سے زیادہ امریکہ میں رہتے ہیں، باقی فرانس، کینیڈا، یہ گریٹ برٹن یا انگلینڈ یا جو بھی روس، جرمنی وغیرہ ادھر ہیں۔ اچھا، یعنی دیکھو صورتحال دیکھو، پھر بھی سمجھ نہیں آنی تو دکھ کی بات ہے، نہ آئے، بائیکاٹ کی حمایت کی یا 100% کرو، جگ جگ جیو۔ ہاں، 1.5 کروڑ، دیکھو مسلمان ممالک کی کل تعداد ہے 50 سے تو تقریباً 55، اور 1.5 ارب سے زیادہ پاپولیشن ہے ماشاءاللہ، مومنوں کی نہیں، مسلمانوں کی۔ یعنی ایک طرف 1.5 کروڑ یہودی بمقابلہ 1.5 ارب مسلمان، ایک طرف ایک ملک 72 لاکھ اسرائیل، دوسری طرف 55 ممالک۔ بائیکاٹ کرو، کم نہ کم کرو، اپنے ہم وطنوں کو بھوکا مارنا ہے، بے روزگار کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، بائیکاٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کو تو خراش نہیں آنی۔ اور اقبال نے کہا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، کیا کہا؟ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ بائیکاٹ نہ کرے، بائیکاٹ کیا کر لو گے؟ ان کی دولت کا، ان کی ٹیکنالوجی کا، ان کی ایجادات کا کوئی اندازہ ہے؟ اوے ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے بال پوائنٹ بھی نہیں بنایا، زندگی بیکار گئی، لیکن خیر ہے، ہمارے پاس دکھانے کو رب کے پاس ہو، رب کے پاس دکھانے کو ہمارے پاس ہونا کچھ نہیں، یہی کہنا ہے کہ اللہ پاک یہی بھونکتے رہے ساری زندگی۔ جو سنا تھا، جو سیکھا تھا حضور کی سیرت سے اور آپ کے بھیجے ہوئے قرآن، جو وہ یہی کرتے رہے، ہم تو یہی پیٹتے رہے۔ تو اندازہ لگاؤ یار، ممڈوب بن رہے کم کام ہے، 72 لاکھ اسرائیل میں، اور کمال ہے یار، باقی 62 لاکھ امریکہ شمریکہ باقی جگہ، مسلمان ممالک کی کل تعداد 50 سے 55، پاپولیشن 1.5 ارب۔ بائیکاٹ کرو، شرم کرو، اپنے بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم دو، وہ ان کی رگوں میں اتارو وہ علوم جن علوم کے میدانوں میں ہمارے حریفوں کے ساتھ، میں دشمنوں نہیں کہہ رہا، کے ساتھ مقابلہ ہے، پہلے اپنے پیکرے ایویں۔ اور یاد رکھو، قرآن پاک میں لکھا ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اور اگر تم بری طرح مغلوب ہو تو پھر اس حکم پہ غور کرو، باقی نہیں۔ چلو حسن صاحب، علامہ اقبال کا ذکر ہوا، شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم وفات پر تقریبات سے خطاب کرتے مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے اقبال کی شاعری مشعل راہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس مشعل کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے مسائل سے نجات حاصل نہیں کر پا رہے؟ اے یار، میں ایسا مشعل کو مارو گولی، یہ کیا مشعل ہے؟ سیرت النبی اور ان پہ نازل ہوا قرآن، وہ ہم جیسوں نے ان سے نہیں سیکھ رہے مشعل۔ یہ تو یہ نا کہ ایک بہت بڑی مشعل ہے تو میں ایک چھوٹا سا اس میں سے تیلی لگا کے تو ایک چراغ جلا دوں، وہ کدھر مشعل ہوئے؟ مشعلیں وہ تھیں جن پہ عمل درآمد کر کے مٹھی بھر مسلمان
दे अब हो गया सहराओं के रहने वाले, पूरी दुनिया पे छाए, पूरी दुनिया को इल्म सिखाया। और तुम्हारी बाहर वेस्ट की यूनिवर्सिटियों में जो गाउन शाउन होते हैं ना, वो चकोर टोपियां, जाके पता करो ये किसकी ट्रेडिशन है। ये अब मुकर्रिरीन ने कहा मसाइल का हल इकबाल की शायरी है, तो बाकी फिर सीरत तो नबी और हमारे आका पे नाजिल होने वाला कुरान, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब है अगर तुम मगलूब हो गए हो तो तुम्हारे मोमिन होने में बहुत बड़ी कसर है। तुम मुसलमान हो, मोमिन नहीं हो। एक लाइन काफी है। अगर आपके अंदर की मरी हुई रूह ने जिंदा होना है, एक लाइन केड़ियां मिसलां है। ये तो वहां से इकबाल जैसे लोग जो शुरू होते हैं, ये तो वहां से रोशनी मुस्तार लेके उधार लेके। अच्छा, कमाल की बात है, इकबाल रूहानी मुर्शद मानता है मौलाना रूम को। अच्छा, मौलाना रूम ने फारसी में शायरी की, वो बल्क अफगानिस्तान में पैदा हुए, कोनिया तरक्की में मदार है उनका, मैं गया मैं हूं। अफगानिस्तान मशरक में नहीं है, तुर्की में, तुर्की आधा मशरक में है। और फिर क्या चाइनीज ने झक्का मारी है। अरे कभी जाके चाइनीज लिटरेचर देखो, बुलाएं हैं बड़ी बड़ी वहां, लेकिन हम मोबाइल गे के मारे हुए अपने आप नू थापड़ियां ये वो वगैरह। वो खुदा का वास्ता देखो, मैं इसलिए कि मुझे आज तक दुख है इस बात का, मैं किधर ये शेर हो तब मैं घुस गया। अल्लाह की कसम, मुझे अगर 8वीं 9वीं में कोई ये अकल आ जाती, मैं पूरी जिंदगी अपनी साइंस के लिए वक्फ कर देता। कोई तो एक आध चीज, लेकिन नहीं, हमारे तो बस में नहीं है। जो कुदरत ने करना था वो कर दिया। तो जिसको वो इंस्पिरेशन जिससे लेते हैं, वाह सादी थे मौलाना रूम थे ये थे वो, जाओ। बहुत खूब। एक मुकर्रिरीन का कहना था हमारे तमाम मसाइल के हल के लिए इकबाल की शायरी। ओए अकल में हाथ मारो, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। सही। हसन साहब, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदारी न करने पर हुकूमत पंजाब के फेल को किसानों का मौशी कत्ल करार देते हुए कहा कि नून लीग जब इक़्तिदार में आती है तो शेर आटा खा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये बात मैंने आप ही के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है आधी दर्जन बार ये कहा है। अब्बास सतर एडिटर थे उस अखबार के, मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, बहुत प्यारे आदमी थे। शेर आटा खा गया, ऊपर सिर्फ आटा की है। इस मुल्क के जिन्हें भी शेर ने उन्होंने बहुत कुछ खादा है। और ये शेर शूर नहीं है, शेर का पेट भर जाता है। ये डायनासोर्स हैं, इनके पेट नहीं भरते। ओ अल्लाह की कसम, लंदन जाओ जीना मुश्किल हो जाए तो साथ बैठा होता है। को दोस्त है आपका, ये मेरी 2 of my sisters live there, को भाई ये फलां दी, ये फलां दी, ये फलां दी। और मैं नाम भी नहीं ले सकता भी, मेरे को की मैनू ना दिलचस्पी है, लेकिन जबान जदिया मैं इत्थे छोड़ो सारे ही एक दूसरे तो बद के ने। आटा क्या, इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं। जरे मुबादले तो फलाना तो हमने तो वो निकाला था तो कर्ज उतारो। अच्छा, कमाल दी गल है कि वो फलां ने पाकिस्तान को मखरूज किया, और तू केड़ी मुहिम चलाई सी भाई मेरे, जब तुमने कहा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, इसका मतलब है सी नहीं झूठ। दूसरी तरफ फैसल साहब, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर अवाम को रिलीफ ना मिला तो हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। एक और अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी की बेहतरी के लिए कमेटी बना दी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ना अपना अगर ही ज़ाया किया है। अगर अवाम को रिलीफ ना मिला, वो नहीं है। एक चंद दिन पहले आपका वजीर ख़जाना कह रहा था कि महंगाई कम हो गई है लेकिन नीचे तक नहीं पहुंची थी, फिर अपने को रखो। मैंने यही कहा था आप ही के प्रोग्राम में मेरा ख्याल। अच्छा, अब दूसरी तरफ हुकूमती कारकर्दगी की बेहतरी के लिए कमेटी, ये क्या है? ये इसका मतलब है नहीं बेहतर। तो ये देखो सारे के सारे
पता नहीं अगेन हम पे कोई जादू है, कोई तावीज़ गंडा मिन हैसुल कौम हम पे किया गया। हम इन लोगों को रहनुमा, कायदीन, लीडर, पता नहीं क्या सियासतदान कहते हैं। वो सियासतदान इस तरह का होता है, ये फॉर्चून हंटर। खुद देखो, खुदा की कसम ये को काम है करने वाला। एक दो एजेंसियों के सुपुर्द करो, वो का सारा कच्चा चट्ठा। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन सियासत में आए उस साल कितना टैक्स दिया था, खत्म। आज कहाँ हो? और आपके बाकी भाई कजन्स वगैरह वो कहाँ हैं जिन्होंने होल टाइम कारोबार किया? आपने होल टाइम पॉलिटिक्स की। लेकिन यहाँ तो पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ा कारोबार है, वही सबसे बड़ी सनत है, वही सबसे बड़ी तिजारत है। तो अगर ज़ाया किया है मौलाना ने अपना। चीन ने सूबा सिंकियांग के एक साबिक एहलकार को 12 करोड़ डॉलर रिश्वत देने के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई है। सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी के साबिक डेप्यूटी सेक्रेटरी ने 1999 और 2023 के दरमियान मुख्तलिफ सरकारी ओहदों का गलत इस्तेमाल करके भारी रकूम इकट्ठी की। भारी रकूम कितनी मसलन है? भारी बताओ ना मुझे, कितनी है? हाँ, भारी से क्या मुराद है? 12 करोड़ डॉलर। हाँ बस, ये हम जैसे गरीब गुरबा को 12 करोड़ डॉलर रकम लगती है भी, लेकिन यहां तो 12 अरब डॉलर को पीछे से चढ़े कोई ढंग के खोजी हो। लेकिन यही फर्क है कि हमसे बाद में आजाद होने वाला चाइना हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन के साथ सुपर पावर बनने की रेस में है, और हम, बताओ, यही फर्क है। देखो बात सुनो, नाम लेते हैं, जबानें काट देनी चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने, किसी शायर ने उनकी शान में कसीदा पढ़ा, और ये नॉर्मल बात थी अरब वर्ल्ड में। ये कसीदे वगैरह मोहब्बत से, एहतराम से, ये मुख्तलिफ, तो ये नॉर्मल बात थी, कोई अनोखा काम नहीं था। तो खालिद बिन वलीद बहुत मुतमव्वल बाप के बेटे थे। उन्होंने कोई इनाम दिया, पता लग गया हज़रत उमर को, वो खलीफा थे उस वक्त। उन्होंने साहबी को भेजा, जाओ जरनैल नू ना वो की उनको साफा लपेट के पढ़ ले आओ। लॉजिक क्या थी कि अगर अपनी जेब से दिया है तो असराफ है, और अगर सरकारी उससे दिया है तो वो खयानत। ख़त्म। हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा आलीशान आदमी, ज़बरदस्त बंदा। अच्छा, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वो करीबी भी थे, ये भी याद रखना। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वहाँ 12 करोड़ डॉलर पे फांसी दी जाती है, वहाँ शायद 12 डॉलर पे भी दिए। तो करो ना यहाँ जरा, देखो ये जितनी लुट मार है, ये तालीम पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे खर्च हो, ये तो करप्शन तो जी ऐसा दानिश्वर भी आए थे, वो कहते नहीं करप्शन फलाना नहीं। वो बात सुनो, करप्शन जहाँ इंसान होगा वहाँ जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, लेकिन यहाँ करप्शन के अलावा है ही कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कोई फरिश्तों का मुआशरा कोई उसके बारे में सोचता हूँ या ड्रीमिंग करता हूँ और ये फलाना। नो, जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा, वहाँ जुर्म भी होगा। लेकिन खुदा का वास्ता यार, पूरी दुनिया में जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। न्यूयॉर्क चले जाओ, फलां जगह चले जाओ, फलाने का फलां, सबको पता है सबका। लेकिन नहीं, लेकिन और फर्क भी यही है, वरना चीनियों की 4 टांगे नहीं होती ना, उनकी तीसरी आंख माथे पे है। बस हिसाब किताब और एहतसाब, जहां एहतसाब नहीं है वहां सवाए अजाब के कुछ हो नहीं सकता।